Bismillahirrahmanirrahim. Yes, convert the following two's complement binary integer into denary. Show your working. Asha beta, it says this is two's complement number. It means you will convert it and it is negative number. तो इसको तो आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल कर कन्वर्ट करना है, So don't you राइट? take minus 128? सॉरी बेटा. So you do minus 128 plus 64 plus Okay, you may do this whatever method, but this method you will perform like 1 1 0 0 1 0 then you will calculate its ones complement or directly two's complement. The two's complement will be how to calculate two's complement. After first one, we will invert every number. Then you calculate the number 1, 2, 4, 8, 16, 32. So 16, 32, 48, 48 and 4, 52 and 53. So your answer is minus 53. Yeah, so you'll get that if you do. Okay, convert the unsigned. It says that this is unsigned number, right? Into hexadecimal number. So this is unsigned number, no positive, no negative, and you are asked to convert it into a hexadecimal number. So you will make group of 4 bit and then convert 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8. 8 and 2, 10 means A, and 8 and 4, 12, 1, 13. 13 means Namir, So it's 13. 8D, 13. Are you sure? D? not B, sir, D. D. What you say, Namir? Rania? So it's 80. A, D. Okay. Convert the following denary number into BCD. ठीक है, अब अगर इसको BCD में कन्वर्ट करना है तो what will we do? We will separate each digit and then we will convert each digit separately. 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 like we have done in hexadecimal number, but here the range of numbers are from 0 to 9. In BCD we have number from 0 to 9. So 1 is 0 0 0 1, 7 is 0 triple 1, 5 is 0 1 0 1 and 3 is 0 0 1 1. अच्छा, फिर give two examples of practical application of BCD. हाँ भाई, BCD की two example आपको देनी है. What are the two examples of BCD? Basically, it is used to represent a string of Numbers, sir. numbers. Huh? For example, barcode reader, barcode numbers. Yeah. So the example of it are barcodes, numbers on products. ठीक है, and digital display on left, digital display on calculator. ये सब क्या होते हैं? BCDs के थ्रू. Now, an encryption routine replaces encryption means replacing a number with other number, so it will become meaningless. So an encryption routine replaces each character in a short message with a different character. For example, the following table shows how the routine encrypts the word hello by adding to the 3 to ASCII denary value of each character. For example, H है. Capital H is represented in denary by 72. 72 plus 3 is 75, and at 75 we have character K. So H will be replaced with K, E will H, L with O and O with R. तो आपके पास hello जो है वो it will be hello will be converted into this number. So
if you are sending this message to anyone, तो अगर कोई ईव्सड्रॉपर, कोई आपका हैकर इसको अगर पढ़ ले तो उसकी समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज रिटन। अब आपसे कहता है कि वांट्स आर टू बी इनक्रिप्टेड। चलें जल्दी से इनक्रिप्ट करें वांट्स को। यू नीड टू नो द एस की वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। व्हाट इज द एस की वैल्यू ऑफ डब्ल्यू? इफ एस की वैल्यू ऑफ ओ इज 79, हाँ, So W आर 65 plus something. 65 प्लस समथिंग यू में से। अच्छा, याद रखना है कि ए इज 65 एंड जी इज 90, तो डब्ल्यू चाहिए आपको। ठीक है, तो डब्ल्यू का मतलब ये हुआ कि वाई एक्स डब्ल्यू है। तो इफ वाई जी इज 90, इट मीन्स ए इज 89, So 88, 87. 87। ठीक है बेटा। अच्छा, ए इज 65। अच्छा भाई, ओ की वैल्यू है एल एम एन ओ की वैल्यू है 79, तो एन की वैल्यू क्या होगी? ओ इज 79, देन So एन की वैल्यू 78. 78। अच्छा भाई, डी, इफ ए इज 65, बी इज 66, ई 68. इज 68। अच्छा भाई, एस, एस की वैल्यू क्या होगी? इफ आर इज 82, आर इज 82, तो एस 83. क्या होगी बेटा? 83। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें +3 करना है, तो ये क्या हो गया? 90, ये क्या हो गया? 68, ये क्या हो गया? 81, ये क्या हो गया? 71, और ये क्या हो गया? 80। ठीक है, तो 90, वी नो द 90 इज इक्वल टू जी। ठीक है, 68, 69 इज ई, तो That's 68 विल बी डी। अच्छा भाई, 81, 79 is O, तो 80 will P and 81 will be Q। ठीक है ना? अच्छा भाई, 71, if 72 is H, So it'll be G. G, it will be G ना? अच्छा, 86, 86, if 87 is W, तो 86 will be V। V. राइट, ये हो गया। अच्छा मेरे बच्चों, Daniel is creating a sound file for a school project. Daniel records the sound using sampling rate 44.1 kilohertz uh, and a sampling resolution of 16 bit. State what is meant by sampling rate 44.1 kilohertz. State what is meant by sampling resolution 16 bits. जी बेटा, So part 1 or part 2? part 1 and 2 both. So what will we write for part 1? आप बताएं। सैम्पलिंग रेट आपसे क्या क्या कह रहा है? सैम्पलिंग रेट, व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड सैम्पलिंग रेट? The number of bits per second? नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकंड मेरा बच्चा। Or samples per second. नंबर ऑफ सैंपल्स रिकॉर्डेड पर सेकंड। तो ये तो हो गया सिंपल सी बात। तो आप क्या कहोगे? 44.1 किलोहर्ट्ज मींस, किलो मींस 1000, 44,100 samples are recorded per second। 44,100 samples are recorded per second। ठीक है बेटा। व्हाट इज meant बाय सैम्पलिंग रेजोल्यूशन ऑफ 16 बिट? तो सैम्पलिंग रेजोल्यूशन मींस नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल, मींस 16 bits are used to store data for
one sample. ठीक है ना? Sampling resolution means number of bits per sample. How many samples are how many bits are used to store one sample? अच्छा भी. Daniel needs to write a report about the sound he is using for his project. He will use keyboard to write this report. Describe the basic internal operation of keyboard. Now you need to memorize the internal working of keyboard. अब कीबोर्ड की वर्किंग याद है आपको? हेलो No, sir. बच्चों. I don't know. हाँ तो अब हैं इंटरनल ऑपरेशन तो याद करना है ना डिवाइसेस के. Sir, So I did it from the topical past paper book, but keyboard wasn't there. So there was like touch screen, laser printer, laser mouse, tracker ball अब mouse, जब keyboard जब wasn't कीबोर्ड आया ना तो lecture in a board. कीबोर्ड आया तो करना पड़ेगा. अब कीबोर्ड के अंदर क्या होता है बेसिकली देयर इज ए की मैट्रिक्स राइट. व्हेन वी प्रेस अ की अंडरनीथ द की ईच की देयर इज अ सर्किट. हाँ. व्हेन यू प्रेस अ की द सर्किट इज कंप्लीट. This data is sent to microprocessor. Microprocessor will compare it with the character map and identify which key is pressed. This data is sent to the computer. there. Can you ठीक write है? it like step by step? हाँ मैं इसको लिख देता हूँ. हाँ. अच्छा. क्या कह रहा है अभी? Uses switches and circuits to translate keystrokes into signals the computer can understand. The key matrix is a grid of circuit. ठीक है? आपके पास की मैट्रिक्स बना हुआ है जो ग्रिड ऑफ सर्किट्स है. 3 layer of plastic underneath the keys. There is a. ठीक है. अच्छा. each circuit is broken beneath the key. ठीक है. when key press a circuit is made, a circuit is complete, the data is signal is sent to the microprocessor of the keyboard. ठीक है. the keyboard will calculate the location of the key using character map. ठीक है. and a character code for each key press is saved in a keyboard buffer and sent to the microprocessor. Yes बच्चों. Yeah, sir, we got it. अच्छा. now describe what is meant by public IP address and private IP address. So, sir, public IP address is the address provided to the home network by the internet service provider. So, is that enough for 2 marks? That's what was written in the notes. You are saying that public IP and So, and private is issued by the router to each device on the home network. ठीक है. and So that's it. That's like 2 points for each. 2 point कहाँ हुआ? 1 point हुआ ना? Yeah. So I don't know what the second point will be. So I know like the differences. I don't know if you write that. अच्छा. public IP addresses are less secure because it is known to all and private IP addresses are more secure. ठीक है. अच्छा. और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की वी हैव अ रेंज. हमने पढ़ा था कि 192.168.0.0 से 192.168.255.255 की रेंज के अंदर आईपी एड्रेस दे रहे होते हैं. अच्छा. इन it may be possible that in two different local area networks we have same private IP address, but it is not possible that in there are two same public IP addresses. Yeah. So these are differences between public IP address and private IP address. First point you have written that public IP address is given by something and private. So public IP address is It's provided to the home network by the ISP. okay. Public IP address. And then so you can write it's less secure. IP address is provided to user by ISP. It it is less secure. नहीं. हाँ ठीक है. It is unique. ठीक है. अच्छा. while
प्राइवेट आईपी एड्रेस के आप लिख सकते हो कि प्राइवेट आईपी एड्रेस इज प्रोवाइडेड बाय राउटर यू में से और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर it is more secure, right? In different uh, networks to private IP addresses may be similar. ठीक है बेटा? Complete the paragraph that describes the sequence of events when a user requests a page from the website. ये बड़ा common question है, ठीक है? ये question multiple times. Yeah, so because this comes in like table form also, and then you have to write the steps. हाँ, इसके अंदर बड़ा वो है। सबसे पहले क्या होता है कि यूजर एंटर्स यूआरएल, this URL is sent to web server, so DNS server. DNS server searches for IP addresses of the web browser, sorry, domain name, and then it sends this domain name to IP address to the user's browser. Then user's browser requests the computer at that domain name, and then the computer sends HTML data. ये तो एक जनरलाइज होगी। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है ये कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ दैट डिस्क्राइब्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हेन अ यूजर requests a web page from a website. Now, the user enters the uniform resource locator into the address bar of the So browser. So then the next one is the database or list. I'm not अच्छा, sure. ये क्या कह रहा है कि the domain name is taken from the URL and sent to the DNS. अब एक बात इसने की है कि domain name is taken from the URL. It means complete URL is not a domain name. अब अगर आप URL को आप देखोगे ना, जैसा मैं अगर अपनी बात करता हूँ अपनी वेबसाइट की, तो मेरी वेबसाइट का URL है https www.inqilabpatel.com और मैंने ए लेवल के नोट्स रखे हुए हैं यहाँ पे, ए लेवल नोट्स, ठीक है? तो ये मेरा URL है ए लेवल के नोट्स के लिए। इसके अंदर दिस पार्ट इज नोन एज प्रोटोकॉल, ठीक है? दिस पार्ट इज नोन एज प्रोटोकॉल. Yeah, so that's the protocol. Then the second part is the domain name. Domain name. The last part tells you which specific page of the domain is being accessed. और sometime these are file name. तो इसमें से वो क्या करेगा, ये वाला पार्ट जो है वो सेंड करेगा। तो क्या कह रहा है कि द डोमेन नेम इज टेकन फ्रॉम द यूआरएल एंड सेंड टू डीएनएस, डोमेन नेम सर्विस सर्वर। दिस स्टोर्स, हाँ, अब ये क्या स्टोर कर रहा होता है, इसके पास दुनिया भर की स्टोर्स डैश ऑफ डोमेन नेम्स एंड देयर मैचिंग आईपी एड्रेसेस। तो डेटाबेस बेटर है ये कि आप डेटाबेस का वर्ड यूज करो, ठीक है? अच्छा, if it finds the domain name, it sends the IP address to the browser. Yes, it says browser again. So what's the last one? I don't know the last one. If it does not find, it sends the request to. अच्छा, अब होता क्या है, मोस्टली ये होता है कि there is not a single domain name, DNS, मल्टीपल DNS होते हैं। अगर आपके पास अगर DNS नहीं मिलता है तो आपका DNS सर्वर क्या करता है, दूसरे DNS सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर रहा होता है। उसके पास नहीं मिलता है तो तीसरे को भेज रहा होता है, एक विद इन टाइम आउट ना। अच्छा, विद इन टाइम आउट अगर कहीं से भी इसको अगर आईपी एड्रेस मिल जाएगा तो ये क्या करेंगे, अपने डेटाबेस को भी अपडेट कर देंगे और यूजर को भी सेंड कर देंगे, यूजर के ब्राउजर को भी। इफ दे डोंट रिसीव आईपी एड्रेस फ्रॉम एनी अदर
DNS server within a timeout, तो फिर वो क्या करेंगे, they will send an error report. तो अभी क्या होगा, if it does not find the domain name, then it sends request to nearby, आप कह लो nearby कह लो, या अदर DNS. ठीक है, इसको चेक कर लें. अच्छा भाई, क्या है भी पब्लिक और अच्छा ये देख लें, डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस, ये मैं आपको दिखा दूं. चेक कर लें मार्केट की पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस वाली. पब्लिक आईपी एड्रेस इज असाइंड बाय ISP. आपने बोला था आईपी एड्रेस कैन बी एक्सेस बाय एनीवन यूजिंग इंटरनेट. द पब्लिक आईपी एड्रेस इज टू गेट इंटरनेट सर्विसेज. पब्लिक आईपी एड्रेसेस आर यूनिक. ठीक है ना, ये हमने 2 पॉइंट तो इसमें से लिखे थे हमने, इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि सिक्योर और लेस सिक्योर. प्राइवेट आईपी एड्रेस इज असाइंड बाय राउटर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर. प्राइवेट एड्रेस कैन बी एक्सेस आउटसाइड द बाय इंटरनेट. प्राइवेट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद इन अ नेटवर्क. ये अच्छा पॉइंट है कि इफ यू वांट टू कम्युनिकेट ओवर नेटवर्क देन यू विल यूज ओवर नेटवर्क के लिए क्या होगा, आप इंटरनेट के लिए क्या करोगे, आप पब्लिक आईपी एड्रेस यूज करोगे. और विद इन नेटवर्क अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो यू विल यूज प्राइवेट आईपी एड्रेस. अच्छा, प्राइवेट आईपी एड्रेस कैन बी डुप्लीकेटेड इन डिफरेंट नेटवर्क्स. और ये हमने देख लिया था थ्रू आउट द नेटवर्क क्या होगा, ये सेम होगा. ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? Yes, sir. अच्छा अच्छा, अब देखें यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है इनका भी देख लेते हैं क्या इन्होंने ब्लैंक फिल किए हैं. अच्छा अच्छा. अच्छा भी क्या कह रहा है, द वेब द यूजर एंटर यूर यूनिफॉर्म वेब ब्राउजर. ये लिखा था हमने वेब ब्राउजर. ठीक है. द डीएनएस इज टेकन फ्रॉम द यूआरएल एंड द एन इंडेक्स लिस्ट और डेटा. अच्छा, ये टेबल बोला है, लिस्ट बोला है, टेबल. अब तो टेबल का वर्ड हमने यूज किया, डेटाबेस मींस टेबल. अच्छा, टू वेब ब्राउजर ये भेज रहा है, और अगर इसको नहीं मिल रहा है तो ये क्या कर रहा है, अनदर डीएनएस सर्वर को भेज रहा है. ठीक है. अच्छा भाई. ना. हम्म. अच्छा भाई, सही है. अच्छा, इसको हम सॉल्व किससे करेंगे बेटा, पहले ए एंड बी एंड दिस वन एंड दिस वन. फर्स्टली वी विल सॉल्व द इनर ब्रैकेट्स. तो ये इनर ब्रैकेट कौन सा है आपका, ए एंड सी. राइट. ये क्या है, बी और सी. ठीक है, एंड बोथ आर कनेक्टेड विथ एंड So you गेट. were lagging. Can you start again? So you were lagging. Can you just start that again, please? I couldn't see. अच्छा बेटा, फर्स्टली व्हाट विल वी डू, वी विल ओपन द इनर ब्रैकेट्स. ये एक इनर ब्रैकेट है एंड दिस. तो ए एंड सी. ठीक है, बी और सी. वी हैव ड्रॉन द सर्किट फॉर दीज इनर ब्रैकेट्स. फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे यूजिंग एंड गेट. राइट, ये हो गया. फिर उसके बाद ये क्या कह रहा है, इस पूरे एंड गेट के ऊपर आपको क्या करना है, नॉट अप्लाई करना है. आपने इसके ऊपर नॉट अप्लाई कर दिया. ठीक है, ये हो गया आपका. हियर वी हैव अनदर गेट ए एंड बी. तो ये हमारे पास ए एंड बी आ रहा है. यहाँ से ए लिया हमने और बी. ये ए बी ए.
अच्छा, इस ए एंड बी और इनको क्या करना है, ज्वाइन करना है यूजिंग और गेट। अच्छा, देर आर 6 gates, तो you may observe that 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 मार्क का क्वेश्चन। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि 6 गेट हो तो 6 मार्क का क्वेश्चन हो। अब इसका वेटेज उन्होंने कम कर दिया, तो कम नंबर का भी, कम मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। डन। Yeah, sir. Done. Now, describe how the following registers are used in fetch execute cycle. तो आपको पूरा fetch execute cycle यहाँ पे describe करना है। So do you have to do it in order, or do you just like do it in the order they give? हाँ, it will be better that you be in order, तो आपके लिए भी easy होगा, लिखना आपके लिए easy होगा if you are So writing I'll just these the in order they order। क्योंकि अगर आपने ऑर्डर में नहीं लिखा तो आपसे भी मिस्टेक हो सकती है ना, तो बेटर ये है कि यू राइट द आंसर इन ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप पीसी को स्टार्ट करोगे, है ना। तो पीसी स्टोर्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। पीसी कॉपीज दिस एड्रेस टू एमएआर into MAR, PC and PC is incremented by 1, ठीक है। देन व्हाट यू विल, अब सेकंड रजिस्टर को आप डिस्कस करोगे, MAR की बात कर रहा है, तो MAR स्टोर्स एड्रेस ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन टू रीड और राइट डेटा। MAR loads this address onto एड्रेस बस, ठीक है बेटा। फिर आ गया MBR। MBR stores data fetched from RAM into CPU or data to be stored from CPU into RAM, ठीक है भाई। फिर क्या है ना, CIR की बात कर रहा है, यस। CIR stores instruction needs to be decoded। CIR sends instructions to decoder of DU to be decoded। How many marks are there? 5 marks. So I think you have written 5 marks, मेरे बच्चों, Yes, sir. Got it. ठीक है। 5 मार्क का क्वेश्चन हो गया किसी को। अच्छा, 5 क्वेश्चन हमने कर लिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ कैरीज आउट बाय द ALU एंड द So it सिस्टम। carries out arithmetic and logic operations. हाँ, कैरीज, ये ALU क्या कर रहा होता है, ALU परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ALU परफॉर्म्स अरिथमेटिक operations like addition, subtraction, file, and logical operations like and, or, no,
अच्छा, सिस्टम क्लॉक क्या कर रही होती है? सिस्टम क्लॉक consists of a quartz crystal with each vibration of system clock of a quartz crystal one instruction is processed. So the system clock controls the speed of processing. बेटा ये हो गया। अच्छा, अब क्या कह रहा है अभी? द टेबल बिलो शोज द इंस्ट्रक्शन सेट LDM CMP। ये वही इंस्ट्रक्शन ग्रुप आ गया। देखो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इंस्ट्रक्शन ग्रुप वाला। अच्छा, LDM क्या है बेटा? इसका इंस्ट्रक्शन ग्रुप कौन सा बनता है LDM का? Data LDM डेटा मूवमेंट। दूसरा आ गया ये अरिथमेटिक ऑपरेशन। So then it's data movement again. डेटा मूवमेंट। So is JPE conditional or unconditional? Basically conditional and unconditional both are one group. Also, so we write conditional, unconditional. You will write down both, huh? Okay. So comparison. Okay. Compare spelling बोले। और ये क्या हो गया? कंडीशनल एंड अनकंडीशनल। अन ठीक है बच्चों। नाउ some assemblers scan the assembly language program twice। याद है हमने दो पास में हमने पढ़ा था। फर्स्ट पास में क्या होता है कि अगर हमने लेबल्स यूज किए हैं तो फर्स्ट पास में तो वो क्या करता है, लेबल्स को सिंबल टेबल में नोट करता है, उनका एब्सोल्यूट एड्रेस नोट करता है, फिर उसके बाद लेबल को एब्सोल्यूट एड्रेस से रिप्लेस कर देता है, फिर सेकंड पास के अंदर उसको ट्रांसलेट करता है। इन द फर्स्ट पास सिंबल टेबल इज जनरेटेड एंड इन द ठीक है, फर्स्ट पास में क्या होता है? सिंबल टेबल बनता है और दूसरे सेकंड पार्ट के अंदर वो उसे कन्वर्ट कर रहा होता है। इसके अंदर क्या होगा अभी? So machine code. मशीन इनटू ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड क्या, ठीक है ना? अच्छा, डिस्क फॉर्मेटर क्या कर रहा होता है? ये आपकी डिस्क को इनिशियलाइज करता है, यानी बिल्कुल इसको जीरो कर देगा, रीसेट कर देगा। वॉट एवर द कॉन्टेंट आर देयर इट विल बी इरेज, ठीक है ना? और इसका नया फाइल एलोकेशन टेबल बनेगा, यानी इसकी इंडेक्स। फाइल एलोकेशन टेबल क्या है? दिस इज जस्ट लाइक इंडेक्स इन योर और यू टेबल ऑफ कंटेंट इन योर बुक्स, है ना? बुक के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट होता है जहां पर ये पता होता है कि भाई इस पेज के ऊपर ये चैप्टर शुरू हो रहा है, इस पेज पे ये चैप्टर शुरू हो रहा है। जस्ट लाइक दिस, when we store data in our disk, so we don't know the location of the data। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये फाइल एलोकेशन टेबल में जब भी आप कोई फाइल की एंट्री करते हो तो फाइल एलोकेशन टेबल में लिख देता है कि दिस डेटा इज स्टोर्ड एट द दिस लोकेशन, लाइक इन दिस सेक्टर और इन दिस सेक्टर और ट्रैक,
ठीक है ना, तो ये मेंशन कर देता है इस ट्रैक को इस ट्रैक्टर के ऊपर ये डेटा स्टोर किया हुआ। तो अब आपको क्या कह रहा है कि दिस फॉर अच्छा रिड्यूसेस द फाइल साइज ऑफ द फाइल साइज कैसे कम करते हैं बेटा? फाइल कंप्रेशन, फाइल कंप्रेशन का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। डीफ्रैगमेंटर क्या कर रहा था? डीफ्रैगमेंटर और अरेंज कर रहा था योर ऑल फाइल्स in at contiguous places, all pieces of fragments of the file at contiguous places and all free spaces at contiguous places। तो सारी फ्री स्पेस एक साथ हो जाती है और सारे जो है वो फाइल्स एक साथ हो जाती है। डैश मेकिंग अ कॉपी ऑफ डेटा इन केस ऑफ लॉस, ये क्या है? बैकअप सॉफ्टवेयर। बैकअप है, बड़ा सिंपल हो गया। ठीक है, तो डिस्क डिफ्रैगमेंटर क्या कर रहा है बेटा? इनिशियलाइजेस द डिस्क। So does formatter initialize or defragmenter? नहीं, डिफ्रैगमेंटर इनिशियलाइज थोड़ी करेगा। इनिशियलाइज करने का मतलब ये हो कि रीसेट कर रहे हैं So आप वैल्यूज जो भी reorganizes the data, right? वो रीऑर्गेनाइज कर रहा है, ये इनिशियलाइज कर रहा है। इसको इनिशियलाइज करने का मतलब क्या हुआ कि इट विल बी रीसेट, जो भी लिखा हो जो भी कंटेंट होगा वो इरेज हो जाएगा, टेबल ऑफ कंटेंट जो है इसका बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है ना, एंड इट विल बी न्यू न्यूली ऐसा हो जाएगा जैसे कि बिल्कुल न्यू है। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, ब्लैंक हो जाएगी। इनिशियलाइजेशन टू initiate that is data, this will be all content will be erased। ठीक है, और अच्छा ये क्या बोला आपने, ये क्या चीज है? फाइल कंप्रेशन। अच्छा ये क्या बोला भाई आपने, ये क्या चीज है? डिस्क डिफ्रैगमेंटर क्या कर रहा है? इसके लिए ये वर्ड याद रखने आपको। क्या कर रहा है मेरा बच्चा? ये क्या कर रहा है अभी? स्टोर्स ऑल फ्रैगमेंट्स ऑफ फाइल्स any pieces of files Sir, can you and just say blocks in the marking scheme with the back it says blocks? हाँ बेटा, So instead of fragments, can we say blocks? हाँ ब्लॉक्स क्या है? If the note says blocks. कंटीजियस, कंटीजियस की स्पेलिंग में क्या इशू है? कंटीजियस So it's Yes. UOUS. बेटा It's UOUS. UOUS, ठीक है, कंटीजियस प्लेसेस एंड फ्री फाइल्स एंड फ्री स्पेसेस एट कंटीजियस प्लेसेस। आ गया है? इसके स्पेल चेक करके चेक कर लेते हैं। QNTIGU, अच्छा वो नहीं आएगा, आई नहीं आएगा। अच्छा ये क्या हो गया भाई आपका? बैकअप। अच्छा भाई, अब आपको ये आइडेंटिफाई करना, वेरिफिकेशन वैलिडेशन बड़ा कॉमन, ये सारे क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप लोग इनको करेंगे ना, ये आपके पास बड़ा एडवांटेज है कि प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं। ये क्वेश्चन भी कई दफा रिपीट हुआ है। तो वेरिफिकेशन वैलिडेशन, हाँ मेरे बच्चा क्या बोलते हैं इसको? Parity check is verification. वेरिफिकेशन So double डबल entry is validation, I think. अरे ना ना, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे Double entry is also verification, and format check is फॉर्मेट चेक इज validation. ओए होए No, sir, actually, all three are verification. देखा, जरा सा मैंने बोला और आप बोल गए, ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपको।
मेरे बच्चे ये क्या किया? Sir, I haven't learned this part yet. ये तो बहुत So गलत I बात have की ना आपने। ये तो गलत बात है। ये क्या बात की आपने कि मैंने अभी तक नहीं पढ़ा? Sir, because this is like the ratta part, so I'll do it like 3 days नो before. मेरा बच्चा, इसमें रट्टा पार्ट क्या है? अच्छा, Sir, वी हैव वेरिफिकेशन। पहली बात तो ये कि वेरिफिकेशन इज यूज्ड टू चेक करेक्टनेस ऑफ डेटा, द डेटा दैट मैचेस द ओरिजिनल वन। करेक्टनेस की बात कर रहा है। अच्छा, करेक्टनेस ऑफ डेटा, ठीक है। देन वी हैव वैलिडेशन। वैलिडेशन यूज्ड टू चेक द सेंसिबिलिटी ऑफ डेटा, अब इसके अंदर जो मेथड थे हमने पढ़ा था, 2 मेथड्स एट द टाइम ऑफ एंट्री। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया एंट्री के टाइम का, तो क्वेश्चन आया था एंट्री के टाइम बता दें। 4 मेथड्स आर एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ये 6 मेथड है पक्के पक्के, इसमें इसके अलावा कुछ है ही नहीं। पहला मेथड है डबल एंट्री, दूसरा मेथड है विजुअल चेक, फिर पैरिटी है, एको है, एको चेक, फिर है आपका ARQ और चेकसम। इसके अलावा कोई मेथड ही नहीं है वेरिफिकेशन। वैलिडेशन में फिर हमारे पास बहुत एक लंबी रेंज है, जैसे हमारे पास रेंज चेक हो गया, प्रेजेंस चेक हो गया, लेंथ चेक हो गया, फॉर्मेट चेक हो गया, टाइप चेक हो गया, लिमिट चेक हो गया। लिमिट चेक में सिंगल बाउंड्रीज गिवन, रेंज चेक में बोथ बाउंड्रीज आर गिवन। चेक डिजिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? फॉर्मेट चेक, वैलिडेशन। आइडेंटिफाई वन मेजर ऑफ वेरिफिकेशन दैट इज नॉट गिवन, तो आप इनमें से कोई भी दे सकते हैं। आपने कह दिया चेकसम। वन मेथड ऑफ वैलिडेशन जो यहाँ पे नहीं है, तो आप देते हैं रेंज चेक। वैसे पेपर इजी है। अच्छा, डिस्क्राइब हाउ रन लेंथ एनकोडिंग कैन बी यूज टू कंप्रेस अ सिंगल वीडियो फ्रेम, तो ये तो हमारे पास है ही नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा? वैसे भी अगर होता भी तो भी हम लिख सकते थे। हम क्या करते हैं इसके अंदर, पहले साउंड को कंप्रेस कर देते, फिर इमेज को कंप्रेस कर देते, फिर उसके बाद ये आ गया RDBMS। तो हमने 1 to 8 क्वेश्चंस कर लिए बेटा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे।